الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، گزشتہ ہفتے جس موضوع کا بیان تھا اسی سلسلے کی چند باتیں آج بھی بیان کی جا رہی ہیں. ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے سلسلے میں ان کے ترجمے کے ضمن میں ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. یہ واقعہ ہم سب سنیں، اس کے اندر ہمارے لیے نصیحت کا بہت بڑا سامان موجود ہے، اور ہم دیکھیں کہ کیسے سلف صالحین دوسروں کی ہدایت کے لیے، کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے کس انداز میں کوشش کیا کرتے تھے. ان کا یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ایک شخص سے. ایک ایسے شخص تھے جو کوئی دیندار نہیں تھے، غلطیاں اور گناہ وہ کیا کرتے تھے. ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کم عتت علیک، آپ کی کتنی عمر ہوئی ہے، کتنے سال اس دنیا کے اندر گزارے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 60 سنہ، 60 سال ہماری عمر ہوئی ہے. انہوں نے پھر کہا فأنت منذ 60 سنہ تسیر الی ربک توشک ان تبلغ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آپ 60 سال سے اللہ رب العالمین کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں، اور عنقریب آپ اللہ رب العالمین سے جا ملیں گے. یعنی 60 سال کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ انسان اس کے بعد اللہ رب العالمین سے جا ملنے کے لیے اپنی موت سے بہت قریب تر پہنچ چکا ہوتا ہے. انسان کوئی نہیں جانتا کہ کس شخص کو اللہ رب العالمین نے کتنی عمر نصیب کی ہے، اس کے مقدر میں کی ہے، کتنے لمحات اور کتنی گھڑیاں، یہ کوئی شخص نہیں جانتا. لیکن 60 سال کی عمر اتنی عمر ہوتی ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ زندگی کی امید رکھنا یہ بے معنی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ 60 سال سے تم اللہ رب العالمین کی جانب پڑھ رہے ہو، اپنے پروردگار کی طرف پڑھ رہے ہو، اور بہت عنقریب تم اس سے جا ملو گے. انہوں نے کہا فأنت فقال رجل، اس آدمی نے کہا یا بالی ان للہ و ان الیہ راجعون. ان کی یہ بات سن کے اس شخص نے کہا کہ اے ابو علی، ان کی کنیت تھی کہ ان للہ و ان الیہ راجعون. تو انہوں نے پوچھا کہ تعلم ما تقول، جو بات تم کہہ رہے ہو اس کو جانتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ، یہ بات جو تم نے ادا کی اپنی زبان سے، جانتے ہو کہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا قلت ان للہ و ان الیہ راجعون. میں نے کہا کہ ان للہ و ان الیہ راجعون. تو انہوں نے پوچھا حل تعلم ما تفسیر، تمہیں پتہ ہے کہ اس کلمے کی، اس جملے کی تفسیر اور معنی کیا ہے؟ تو شخص نے کہا فسرہ لنا یا ابالی، جناب آپ ہمیں بیان کر دیجیے، ہم سے اس کی تفسیر کا بیان کر دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ قول کا ان للہ تقول ان للہ، جب تم یہ کہتے ہو کہ ان للہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ان الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی ہم اللہ رب العالمین کی ملکیت ہیں، اس کی مخلوق ہیں. اس نے ہم کو کچھ کام اور کچھ ڈیوٹی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس کام کو کرنے کے بعد ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اپنی مدت، اپنی اجل کو پورا کر کے ہم کو اسی کی جانب، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فمن علم انہ عبد للہ وانہ الیہ راجع فلیعلم بانہ موقوف. تو جس شخص کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، تو وہ یہ بھی جان لے کہ اللہ کے پاس جا کے اسے رکنا ہے. یعنی انسان جب یہ جان جائے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، اس دنیا کے اندر آیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اللہ رب العالمین جیسے چاہے اس کے اندر تصرف کرے، جو چاہے اس سے کام لے، جس انداز میں چاہے اسے رکھے، جیسی اس کی زندگی دے، جو کچھ چاہے اسے میسر کرے، تو چاہے اس کو تنگ زندگی دے یا بہت ہی آسان زندگی دے، وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے ہر حال میں، اور اللہ رب العالمین جیسے چاہے اس کے سلسلے میں تصرف کر سکتا ہے. تو بندے کو، ہر شخص کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور جانا ہے کس لیے؟ کہ بندگی کے تقاضوں کو ہم نے کس حد تک پورا کیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں کام دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، یوں ہی نہیں بھیج دیا کہ ہم سے کوئی سوال نہ ہوگا،
बल्कि हमसे सवाल होगा और हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जाना है और वहाँ रुकना है। फ़लियालम बिअन्नु मौक़ूफ़ वमन आलिम बिअन्नु मौक़ूफ़ फ़लियालम बिअन्नु मसूल। जो शख्स ये यकीन रखे, जिसे इस बात का यकीन हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उसे लौट के जाना है, उसके पास ठहरना है, तो उसे ये बात भी जाननी चाहिए कि उससे सवाल होगा। दुनिया के अंदर ये यूँ ही वो नहीं आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ड्यूटी दी है तो वो उससे सवाल करेगा। दुनिया के अंदर हम सब काम करते हैं, कुछ लोग हमारे मातहत होते हैं, हम उनको कुछ काम देते हैं और किसी काम के लिए उनको कहीं भेजते हैं। जब वो लौट के आता है तो उससे हम उस काम के बाबत पूछते हैं, दरियाफ़्त करते हैं, हिसाब किताब लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस दुनिया के अंदर पैदा किया, वो हम उसकी मखलूक हैं, उसकी मिल्कियत हैं, वो जैसे चाहता है तसर्रुफ़ करता है। हम सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट के जाना है और वहाँ जाकर हिसाब किताब देना है। अपने अमल की बाबत हमसे वो पूछेगा और उसका हमें को जवाब देना है और उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जज़ा या सज़ा इंसान को मिलेगी। वमन आलिम अन्नहु मसूल फ़लयुइद लिस्सवालि जवाबा। इस बात पर हम गौर करें कि उन्होंने आखिर में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेगा, वो वहाँ जाएगा तो उससे पूछा जाएगा, उसके सामने कुछ सवाल रखे जाएंगे, तो उसे चाहिए कि इस दुनिया के अंदर वो सवाल का जवाब तैयार कर ले, वो इस अंदाज़ में ज़िंदगी जिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जाए तो जो सवाल होने वाले हैं उसका जवाब उसके पास मौजूद हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें ऐसी मिलती हैं जिसमें यह बयान मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम जब जाएंगे कब्र से लेकर हश्र के बाद जो हिसाब किताब होगा उस मौके तक कौन कौन से सवालात होंगे हमसे, ये सारा बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर मौजूद है। हम सब उसे जानते हैं, इसलिए कि बारहा उनका बयान और तस्करा उनका खुतबों के अंदर और तकरीरों के अंदर हुआ करता है। तो उस शख्स ने कहा कि फमल हिला। इतनी बात सुनने के बाद उस शख्स के जहन के अंदर ये बात आई कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और अब ये वक्त आ गया है कि हमारी इस्लाह होनी चाहिए। तो उनके सामने रखा कि अब हम करें क्या। फमल हिला, हमें क्या करना चाहिए, हमारे आगे रास्ता क्या है। उन्होंने कहा कि यसीरा, ये बहुत ईजी चीज़ है, बहुत आसान सा तरीक़ा है जिससे तुम अपनाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी जो जिस अंदाज में गुजरी है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दरगुजर कर देगा। उन्होंने कहा कि फमा ही, उसने पूछा उस शख्स ने कि वो आसान तरीक़ा क्या है। उन्होंने कहा कि तुहसिन फ़ीमा बक़ी युग़फ़र लका मा मदा व मा बक़िया, कि देखो जो ज़िंदगी तुम्हारी बची है, बाकी बची है, उसमें तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा सलूक करो, यानी नेकियां कमाओ, एहसान भरा काम करो, नेकी अपनी ज़िंदगी को अब बदल दो। जैसी ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी से ताइब हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा कर लो और ज़िंदगी को अपनी बदल दो। तो हुसैन फ़ीमा बक़ी युग़फ़र लका मा मदा व मा बक़िया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उन ख़ताओं और लग़्ज़ियों और गुनाहों को भी माफ़ कर देगा जो तुमसे हो चुकी हैं, और आइंदा ज़िंदगी में जो तुमसे बशरी तकाज़े की बिना पर गुनाह होगा तो तुम्हारे उन गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा, इसलिए कि तुम नेकी के रास्ते को अपना चुके हो। अगर तुमने तौबा करके नेकी के रास्ते को अपनाया है तो बशरी तकाज़े की बिना पर जो तुमसे गुनाह होंगे तो उसका तुम्हें एहसास भी होगा, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करोगे और उससे तौबा करोगे, सच्ची तौबा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गुनाहों को भी दरगुजर फरमाएगा। फ़इन्नका इन असाअत फ़ीमा बक़िया उख़िज़्त बिमा मदा व मा बक़ी। और उन्होंने ये भी फरमाया कि देखो अगर तुम बाकी ज़िंदगी के अंदर बुरा काम करते रहोगे, गुनाह जो तुम करते रहो अब तक की ज़िंदगी में वही बाकी ज़िंदगी में भी करते रहोगे, तो तुम्हारा मुआवज़ा जो कुछ तुमने ज़िंदगी भर किया है, जो सारे गुनाह उस पर भी होगा और जो आइंदा गुनाह करोगे उस पर भी होगा। तो उनका ये समझाने का अंदाज़ देखिए कि किस तरह से सलफ़ सालिहीन किसी को समझाया करते थे। उनके जहन के अंदर ये नहीं होता था कि बहुत बड़ा मजमा हो और बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, खूब शानदार किसी की महफिल हो और वहाँ वो तकरीर करें। उस ज़माने में ये लाइक या डिसलाइक का कोई चक्कर नहीं था, आरटीपी का कोई मैटर नहीं था। उस ज़माने में लोग सिर्फ यही देखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोगों ने सीखा था कि किसी एक शख्स की हिदायत का सामान अगर इंसान ने कर दिया तो उसके लिए बहुत कीमती सामान, जो सबसे कीमती सरमाया दुनिया के अंदर हो सकता है किसी शख्स के पास, उससे कहीं बेहतर है। और वो इसी रविश पे हुआ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और साहबे कराम का जो तरीक़ा था लोगों को समझाने का, उस अंदाज़ को उन लोगों ने सीखा था सलफ़ सालिहीन ने, और उसी अंदाज़ को अपनाए हुए थे। ये नहीं कि कोई शख्स किसी को हर अंदाज़ में कहता फिरे, दूसरों की तनकीस करता रहे और इसी को समझे कि इसमें हमारी बड़ाई और बुजुर्गी है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अहले खैबर के पास भेजा था उस जंग के मौके पर कि जाओ
वहाँ जाकर उनको दीन की दावत दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़वल्लाहि लइन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम, कि अल्लाह की कसम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ज़रिए किसी एक शख्स को हिदायत दे दी, रजुलन वाहिदा, किसी एक शख्स को हिदायत दे दी, तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से भी ज़्यादा बेशकीमत होगा। उस ज़माने में अरब के अंदर सबसे कीमती चीज़ जो तस्वुर की जा सकती थी ये वही थी, सुर्ख ऊँट था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो, अगर तुमने दावत दीन का काम किया और इस काम में लगे और तुमसे किसी एक शख्स को भी हिदायत मिल गई, किसी ने भी अपनी गलतियों का तस्वुर करके तौबा करके सच्चाई के रास्ते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के रास्ते को अपना लिया, तो ऐसी सूरत में तुम्हारे सबब से चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हिदायत दी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको उतना अजर देगा जो दुनिया की बेशकीमत चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को हम समझें कि कैसे सलफ़ सालिहीन दूसरों को समझाया करते थे, और इस चीज़ को भी समझें कि छोटी छोटी बातें जो औरात जो अज़कार हम पढ़ते हैं, हमें याद है, उनके मानी मतलब को हम समझें, उसके अंदर हम गौर करें तो हम ये पाएंगे कि उनके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, इतनी बातें और इतनी बरकतें हैं कि हमारी ज़िंदगी को बदल देने के लिए काफ़ी होती हैं। बसा औक़ात हम सारी दुआएं पढ़ते हैं, शब व रोज़ की जो अज़कार हैं उनको भी हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं, लेकिन मानी मतलब के अंदर गौर नहीं करते तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा हमको नहीं पहुंचता। लेकिन अगर हम उनको समझेंगे, गौर से पढ़ेंगे, उनके मानी को समझेंगे, तो ऐसी सूरत में हमको मज़ीद फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अजर से भी नवाजेगा, और उन दुआओं का, उन अस्कार का जो फ़ायदा दुनिया में पहुँचता है उससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको महरूम नहीं रखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इन चीज़ों को समझने की और दीन की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ पर रफ़ना आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।